So students, let's start with the very second exercise of your parallel lines chapter. Okay, your practice set 2.2 we are going to start today. Okay, in 2.2 I have done the MCQ. Okay, that is question number 1. This I have completed in the last lecture. Okay, 2 MCQs were there that I have completed. Then second question was also completed. Now today we are going to start with the third question. Okay, now what is your third question? Now in the last lecture I have told you some properties of your corresponding angles. Okay, some properties of your interior alternate angles, some properties of exterior alternate angles, and also interior angles. Okay, so now those all properties we are going to apply in this example. Okay, how? Let's see. So this is your which example? This is your third example. Okay, this is the diagram. Okay, in this diagram, students, what we have to find out? We have to find out values of angle A, angle B, and angle C. Okay, but before that, what is given to you? That I will write down. Okay, so student, what is given to you? Here, the things which are given to you are that this P and Q are parallel to each other. So what I'll write down? Line P is parallel to line Q. Okay, very first, and then these two lines are also parallel, L and M. So line L is parallel to line M. Okay, this is also given parallel. Now what we have to find out here? What we have to find out, students? We have to find out the values of angle A, then angle B, and angle C. Okay, so let's start. Okay, students, if you will see in the diagram, only one angle we are having, that is 70 degree. And here a angle is associated. ये इससे जुड़ा हुआ है. ठीक है, कैसे जुड़ा है मैं बताती हूँ. Okay, देखो बच्चों, if I will draw these two lines which are parallel, अभी तो मैंने बताया था that line P and line Q both are parallel to each other. और बच्चों, अगर मान लो मैं ये ट्रांसवर्सल ले लूँ, ठीक है, मेरा डायग्राम जो है प्रॉपरली सब लोग देखेंगे, मैंने पूरा डायग्राम ड्रॉ नहीं किया, आई हैव ओनली ड्रॉन द पार्ट ऑफ इट. ओके, यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ करने के बाद में बच्चों क्या क्या लिया हमने? वी हैव टेकन लाइन पी विच इज पैरेलल टू लाइन क्यू. ओके, एंड वन ट्रांसवर्सल वी हैव टेकन एल, एंड यहाँ पे मेंशन करेंगे बच्चों एंड ट्रांसवर्सल. ओके, मतलब इंटरसेक्ट करने वाला लाइन. सो ट्रांसवर्सल, which line is there transversal? Line L. Okay, so बच्चों, now make a habit of writing like this कि ये क्या था, हमें given था. So मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे? That this is given to us. Okay, given है. Now अभी अगर ये है तो बच्चों यहाँ पे एक एंगल है 70 डिग्री और यहाँ पे है एंगल ए. तो ये दोनों अगर तुम देखोगे तो लाइन के अंदर बने हैं. दे आर मेड इनसाइड द लाइन, अंदर है लाइन के. लाइन के अंदर जो एंगल रहते हैं उनको हम बोलते हैं इंटीरियर एंगल्स. और हमेशा बच्चों याद रखो, तुम्हारे इंटीरियर एंगल्स सप्लीमेंट्री होते हैं. इंटीरियर एंगल सप्लीमेंट्री का मतलब क्या कि 70 डिग्री और अगर ए को ऐड करो तो कितना डिग्री मिलेगा? तो अपने को 180 डिग्री मिलेगा. इट मीन्स योर इंटीरियर है. ये कौन से तरीके के एंगल्स है? इंटीरियर, अंदर बने लाइन के, और एक साइड में है ट्रांसवर्सल के. ठीक है, सो दे आर इंटीरियर एंगल्स. तो इंटीरियर एंगल्स आर ऑलवेज सप्लीमेंट्री. तो यहाँ पे लिखने का कि ये कौन से तरीके के एंगल्स है बच्चों? ये अपने इंटीरियर एंगल्स है. तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री. ओके, सो इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री. और इंटीरियर एंगल सप्लीमेंट्री तभी होते हैं जब तुम्हारे लाइंस पैरेलल हो. ये नहीं तो ये भी नहीं. ठीक है, सो रिमेम्बर, अगर लाइन पैरेलल है तो ही हम इनको क्या बोल सकते हैं? सप्लीमेंट्री बोल सकते हैं. सो दैट आई हैव रिटन हियर. नाउ व्हाट आई विल डू, आई विल सॉल्व इट. देयरफॉर का सिंबल डालेंगे 180 डिग्री, देन प्लस 70 बच्चों बनेगा माइनस 70 डिग्री हियर. Then A is equals to 110 degrees you will get. Okay, so the value of A we got here is equals to 110 degrees. Now we have done with the value of A. A का value we have done with.
Now let's move towards the value of C. So for that, students, see, we are having two parallel lines with us. Okay, first is line L, another is line M, L and M. So मैं लिखूंगी यहाँ पे that line L is parallel to line M. Okay, and let's take this as your transversal. Okay, which I am taking as a transversal, P I am taking as a transversal. So students, यहाँ पे transversal भी mention करना जरूरी है. And line P is transversal. Okay, so everything I have mentioned, कौन किसको parallel है, क्या transversal है. Now उसके बाद में बच्चों हम start करते हैं. यहाँ पे अगर बच्चों तुम देखो, this is the 70 degree angle and here is a angle C. तो बच्चों इस तरीके का जो एंगल होता है, दिस काइंड ऑफ एंगल, इनको बोलते हैं एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल. व्हाट दिस काइंड ऑफ एंगल्स आर नोन एज एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल. बाहर के साइड में है, इसके लिए एक्सटीरियर. एक्सटीरियर मतलब बाहर. ओके, अल्टरनेट मतलब ये सेकंड पोजीशन पे है, यहाँ पे ये थर्ड पे है. सो एक्सटीरियर अल्टरनेट, ये बाहर के साइड में है दोनों भी. और अल्टरनेट मतलब एक लाइन के लेफ्ट में है और एक लाइन के राइट में है. ओके, सो देयरफॉर दीज आर योर एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल्स. एंड ऑलवेज रिमेंबर, एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट. ये क्या होते हैं? सप्लीमेंट्री. ओके, इंटीरियर एंगल्स. बट जो एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल होते हैं ना बच्चों, दीज आर ऑलवेज कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर. सो जो सी एंगल है उसका वैल्यू एग्जैक्टली कितना डिग्री आएगा? उसका वैल्यू आएगा एग्जैक्टली 70 डिग्री. बिकॉज वो कौन से तरीके के एंगल्स है, मैं यहाँ पे लिखती हूँ बच्चों, देखो रीजन. दिस इज एक्सटीरियर और वो क्या है? अल्टरनेट. अल्टरनेट का मतलब वन इज ऑन द लेफ्ट, अनदर इज ऑन द राइट. ओके, और दोनों भी एक ट्रांसवर्सल के एक पैरेलल लाइन के ऊपर है, एक पैरेलल लाइन के नीचे है. ठीक है, और दोनों भी बाहर के साइड में, एक्सटीरियर बाहर के साइड में. सो दीज आर एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल्स आर व्हाट? आर ऑलवेज कॉन्ग्रुएंट. सो ये मेरा रीजन है कि एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल्स क्या होते हैं. दीज आर ऑलवेज कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर. ओके, सो इस तरीके से डायग्राम मैंने बनाया है. इफ यू वांट, तुम नहीं करोगे चलेगा, नो इश्यू. बट तुम्हें चाहिए कि तुम्हें समझे बाद में भी, एग्जाम के टाइम पे भी, तो तुम ऐसे लिख लिया करो ये डायग्राम. तो इससे तुम्हें क्लियर कट आइडिया आएगा दैट व्हाट मिस हैव डन एट दैट टाइम. ओके, नाउ आई एम जस्ट मूविंग टुवर्ड्स फाइंडिंग आउट द वैल्यू ऑफ बी. अभी बी को कैसे फाइंड आउट करेंगे देखो बच्चों, मैं बताती हूँ. आई एम टर्निंग द पेज. ओके, बट बिफोर टर्निंग द पेज मैं एक आइडिया देती हूँ हाउ यू विल फाइंड आउट एंगल बी. अगर तुम देखो तो ये दो लाइन एक दूसरे को पैरेलल है. सो लेट्स ड्रॉ दीज लाइन विच आर पैरेलल टू ईच अदर. ओके, सो देखो बच्चों, ये दो लाइन्स है. ओके, दीज आर योर टू लाइन्स विच आर पैरेलल. सो कौन से लाइन्स को पैरेलल लिया है? पी एंड क्यू दिया है. ओके, एंड हियर आई एम टेकिंग दिस एज द ट्रांसवर्सल. किसको ट्रांसवर्सल लिया बच्चों हम लोग ने? अभी एम को. सो यहाँ पे लिखेंगे वो लाइन पी इज पैरेलल टू लाइन क्यू एंड लाइन एम इज द ट्रांसवर्सल. ओके, सो दिस इज योर ट्रांसवर्सल. आफ्टर राइटिंग दिस वी विल राइट डाउन द रीजन दैट इट इज गिवन. ओके, ये गिवन है. देन इफ यू विल सी, अभी हमने एक एंगल फाइंड आउट किया, दैट वाज सी हियर. ओके, और यहाँ पे एंगल बी. ओके, ये दोनों इफ यू विल नोटिस दीज आर योर करस्पॉन्डिंग एंगल्स. पहले ही लेक्चर में बढ़ा दिया था ना कि ये किस तरीके से दिख रहे हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स है. ओके, बराबर पैरेलल लाइन के ऊपर बने, देख लो. ओके, और एक ही साइड में बने हैं. सो ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स है. सो बच्चों ये जो एंगल सी है और एंगल बी है कॉन्ग्रुएंट रहेंगे. कॉन्ग्रुएंट मतलब सेम टू सेम. ओके, सो व्हाट काइंड ऑफ एंगल दीज आर? वो दोनों कौन से एंगल्स है? इफ यू वांट ना, इसके पहले वाला जो वीडियो था वो एक बार रेफर कर लो. ठीक है, इसके पहले जितने भी वीडियोस मैंने बनाए थे वो रेफर करो इस हॉलीडे में, और तुम लोग इसके बाद में इसको सॉल्व कर पाओगे आराम से. सो ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स है. सो ये जब भी वीडियो देखोगे उससे पहले अगर लग रहा है कि हम भूल गए, देन यू कैन स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट लेक्चर. ओके, जो पहला वीडियो था ना, वो पहले वीडियो में मैंने सब कुछ समझा दिया ये वाला. सो ये तुम्हारे करस्पॉन्डिंग एंगल्स है. दीज आर योर करस्पॉन्डिंग एंगल्स एंड करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर ऑलवेज कॉन्ग्रुएंट.
मतलब सेम होते हैं। सो बच्चों जो C का वैल्यू है वो B का वैल्यू रहेगा। नाउ अभी थोड़ी देर पहले एंगल C मैंने फाइंड आउट किया था। ओके, क्या था C का वैल्यू, देखते हैं क्या था C का वैल्यू। एंगल C का वैल्यू है 70 डिग्री। सो एंगल C इज इक्वल्स टू 70 डिग्री। अगर एंगल C 70 है तो B तो उससे सेम टू सेम है, कॉन्ग्रुएंट है, तो एंगल B भी कितना डिग्री रहेगा, एंगल B भी 70 डिग्री रहेगा। सो इस तरीके से बच्चों हम लोग ने पूरा आंसर फाइंड आउट कर लिया है। अब आंसर इज A का वैल्यू इज 110 डिग्री। ओके, देख सकते हैं A का वैल्यू है 110। देन वी गॉट द वैल्यू ऑफ C which is 70 degree. Then last we have got the value of B which is also equals to 70 degree. Okay, and this is your final answer. यह तुम्हारा final answer. Okay, now let's start with the next example which is quite easy. बहुत easy है ये, ठीक है। यहाँ पे भी देखो बच्चों, given I am writing first, ठीक है, हैबिट डालो given to find ऐसा कुछ लिखने का। तो बच्चों यहाँ पे क्या गिवन है, लेट मी टेल यू फर्स्ट। सी, लाइन ए इज पैरेलल टू लाइन बी, ए इज पैरेलल टू बी इज गिवन। ओके, एंड लाइन एल इज अ ट्रांसवर्सल। क्या दिया है, लाइन एल क्या है, ट्रांसवर्सल है, मतलब इंटरसेक्ट कर रहा है। ओके, दिस इज गिवन। नाउ व्हाट यू आर गोइंग टू फाइंड आउट हियर, फाइंड आउट क्या करना है, इजी है। वी हैव टू फाइंड आउट एक्स, वाई एंड जेड। ओके, सो एक्स, वाई एंड जेड वी हैव टू फाइंड आउट। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द सॉल्यूशन। जैसे मैंने बोला इजी एग्जाम्पल है। ओके, तो चलो देखो, व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज, यहाँ पे दो पैरेलल लाइन्स हैं ए एंड बी। मैं लिखती हूँ पहले तो कि ये दो पैरेलल है। तुम बोलोगे मिस यहाँ पे लिखा है तो यहाँ पे लिखना है क्या, यस बच्चों लिखना है, ठीक है। सो लाइन ए इज पैरेलल टू लाइन बी। ओके, एंड कौन ट्रांसवर्सल है बच्चों, लाइन एल इज अ ट्रांसवर्सल। ओके, ये क्या है, ये ट्रांसवर्सल है। सो दिस इज गिवन टू अस। ओके, नाउ इसका यूज करके व्हाट आई विल डू, बस ये देखो, ये है दो पैरेलल लाइंस, ये रहा ट्रांसवर्सल, ठीक है। तो बच्चों ये जो दो एंगल्स है तुम्हारे, ये है 105 डिग्री और ये है एक्स, ये दोनों कौन से तरीके के एंगल्स है, ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स है, ठीक है। सो आई विल राइट डाउन दैट एक्स और 105 एक दूसरे से इक्वल है। वाई, बिकॉज दे आर वॉट काइंड ऑफ एंगल्स, दे आर योर करस्पॉन्डिंग एंगल्स। देख लो डायग्राम प्रॉपरली, ये करस्पॉन्डिंग एंगल के जैसे दिख रहे। सो यहाँ पे लिखती हूँ मैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, मतलब वो दोनों सेम होते हैं। सो ये मेरा रीजन है। सो मेरे को x का वैल्यू मिल गया है। What is the value of x we got here students? The value of x we got is 105 degrees. Now if you will see properly, यहाँ पे ये जो लाइन है और ये लाइन है जहाँ पे x बना है, देख लो, this is x, ठीक है, and exactly opposite to x, y is there, देख रहा है ना। सो दे आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, एक्स फॉर्म हो रहा है, मैंने बताया था एक्स फॉर्म होता है मतलब वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। सो हियर आई कैन से दैट एक्स इज इक्वल्स टू वाई। क्यों एक्स इज इक्वल्स टू वाई, बिकॉज दे आर वर्टिकली, यहाँ पे पूरा लिख रही हूं मैं, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, और वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज कॉन्ग्रुएंट, कॉन्ग्रुएंट मतलब सेम। सो एंगल एक्स हमारे पास है, एंगल x इज हाउ मच, 105 डिग्रीज। सो देयरफॉर y इज ऑल्सो इक्वल्स टू 105 डिग्रीज। सो मेरे को y का वैल्यू भी मिल गया, y का वैल्यू भी कितना है, 105 डिग्रीज। नाउ हमें z ढूंढना है। z के लिए देखो बच्चों, ये इस तरीके का लाइन है, दिस इज योर लाइन A, ओके, दिस इज योर ट्रांसवर्सल L। तो यहाँ पे ये 105 है और यहाँ पे ये Z है, दिख रहा है ना डायग्राम में, ये देखो, ठीक है, सेम मैंने ड्रॉ किया।
सो ये लीनियर पेयर है, दीज आर योर एंगल्स इन लीनियर पेयर। सो बच्चों हम लोग लिख सकते हैं Z प्लस 105, क्योंकि एंगल्स इन लीनियर पेयर का मतलब होता है कि ये एंगल्स का सम 180 होगा। 180 मतलब ये दिख रहा है ना, स्ट्रेट एंगल है, स्ट्रेट एंगल मतलब 180 डिग्री का एंगल, ये पूरा 180 डिग्री है, मतलब ये दोनों मिला के 180 रहेगा। सो ये इसका रीजन क्या आएगा बच्चों, रीजन आएगा एंगल्स इन लीनियर पेयर। ओके, अभी Z एज इट इज प्लस 105 है, that will become minus 105 on this side. So if I'll do the calculation, I'll get 75 degrees for the value of Z. So we got X, Y and Z. But while writing the answer, you will write down it like answer. Okay, and X is equals to what? It is equals to 105. Then Y, it is also equals to 105. And Z is equals to 75 degrees. So बच्चों let us revise. See what I have taken. First I have taken A and B parallel. These are A and B. Okay, this is your line L. So ये दोनों जो angles है, these are your corresponding angles. Corresponding मतलब ये दोनों equal है. So X मतलब 105 हो जाएगा. Corresponding angles are congruent. Now after this, X का vertically opposite, बराबर X के opposite है y. सो x का जो वैल्यू है वही y का रहेगा. सो इफ x इज 105 जो मिला था, देन y इज ऑल्सो 105. ये होने के बाद में बच्चों ये जो है ये क्या है, लीनियर पेयर है, दिख रहा है ना, दिस इज योर लीनियर पेयर. लीनियर पेयर मतलब जिनका सम होता है 180 डिग्री. सो उससे मैंने दोनों का सम 180 लिखा, देन आई सॉल्व इट, प्लस 105 था, दैट बिकम माइनस 105 ऑन दैट साइड, आई गॉट 75 डिग्रीज. And finally I have written all the numbers which I have got X, Y and Z. Okay, I hope कोई doubt नहीं रहेगा, but in case if you are having any doubt, don't hesitate to ask. You can ask the doubt anytime. Okay, let's move towards the next example, which is the last one from your exercise, which is the 5th example. Okay, it is quite easy, very easy it is. See, in the diagram we are having P line, L and Q line which are parallel to each other. ये तीनों लाइन एक दूसरे को parallel है. So I will write down what is given to me, that line P parallel to line L, it is parallel to line Q. Okay, and also what we are having here, what we have to find out here, we have to find out only one angle and that is angle X. ये दिख रहा है ना, ये पूरा एंगल पता करना है. ओके, द होल एंगल वी हैव टू फाइंड आउट. इजी है बच्चों, बहुत इजी है. ठीक है, हाउ वी आर गोइंग टू डू इट, सी पार्ट बाय पार्ट वी विल सी. हाँ, सी इन द डायग्राम what I will take first, I will take this parallel line P, okay, and second one I will take L, and this transversal I will take. अभी सबको आधे लोग को तो पता चल गया यहाँ पे Z बन रहा है, दिखा ये Z सबको, this is your Z. So but obvious these are your alternate angles. कौन से एंगल्स है, अल्टरनेट एंगल. अल्टरनेट का मतलब क्या होता है बच्चों, अल्टरनेट का मतलब है कि अल्टरनेट एंगल्स है. ओके, और ये जो अल्टरनेट एंगल्स है वो Z शेप फॉर्म करते हैं. अभी क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे, ये पूरे एंगल का नाम है X. हाँ, तो हम क्या करते हैं, इसको सिर्फ इतने पार्ट को A लेते हैं और ये वाला जो पार्ट है ना इसको हम B कंसिडर करते हैं. ठीक है, सो दिस आई हैव कंसिडर्ड A, दिस आई हैव कंसिडर्ड B. सो बच्चों अभी ये डायग्राम में A है, दिखा ये सबको, दिस इज A. सो A और 40 डिग्री सेम रहेगा बिकॉज दे आर अल्टरनेट एंगल्स. सो यहाँ पे मैं लिखती हूँ लाइन P लिया मैंने, इज पैरेलल टू लाइन L. ओके, तो इसके वजह से ये कौन से एंगल्स बने, ये बने तुम्हारे अल्टरनेट एंगल्स. दीज आर योर अल्टरनेट एंगल्स. और ये कौन से अल्टरनेट एंगल्स है,
अंदर वाले, अंदर मतलब दो तरीके के अल्टरनेट एंगल्स होते हैं, एक होते हैं एक्सटीरियर बाहर वाले और एक होते हैं इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स। तो ये इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स है, ठीक है, सिर्फ इंटीरियर नहीं, सिर्फ देखो मैं बताती हूँ एंगल के टाइप्स क्या क्या है। एंगल के टाइप्स है करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है, फिर उसके बाद में है सिर्फ इंटीरियर एंगल्स, ये कॉन्ग्रुएंट होते हैं, और ये सप्लीमेंट्री मतलब जिनका सम होता है 180 डिग्री। उसके बाद में आता है एक्सटीरियर अल्टरनेट, क्या आता है एक्सटीरियर अल्टरनेट, ये होते हैं कॉन्ग्रुएंट, और दूसरे आते हैं इंटीरियर अल्टरनेट, ये भी होते हैं कॉन्ग्रुएंट। सो बच्चों देखो मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स। इंटीरियर अल्टरनेट मतलब जिनका शेप जेड के जैसा हो, ये इंटीरियर अल्टरनेट। इंटीरियर मतलब अंदर, अल्टरनेट मतलब एक लेफ्ट में एक राइट में, ओके। सो ये इंटीरियर अल्टरनेट। देख लो यहाँ पे मैंने एंगल्स के टाइप लिखे हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है किसी को भी। सो ए का वैल्यू 40 रहेगा, डन। अभी ये होने के बाद में व्हाट आई विल टेक नेक्स्ट, सी अभी मैं एल ले रही हूँ, दिस इज माई लाइन एल and this is my line Q and this transversal I will take। अभी ये ट्रांसवर्सल लेने के बाद बच्चों ये जो एंगल है इसको मैंने B लिया है, देख सकते हैं, और इसको मैंने 30 लिया है। सो अगेन उल्टा Z है, ये उल्टा Z मतलब अगेन इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स। सो यहाँ पे लिखेंगे कि लाइन L इज पैरेलल टू लाइन Q, ये क्या है गिवन है, ओके। Now in this case students this is again your interior alternate angle, so B is equals to क्या हो जाएगा 30 डिग्री, बिकॉज ये कौन से एंगल्स है, बिकॉज ये तुम्हारे इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स है। सो B का वैल्यू 30 हो गया। नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट अपने को क्या फाइंड आउट करना है, अपने को x फाइंड आउट करना है। सो बच्चों देखो इन द डायग्राम x कैसे बना है, a और b को मिला के बना है। सो x इज इक्वल्स टू व्हाट, x इज इक्वल्स टू a प्लस b, a और b को मिला के आ जाएगा। सो a का वैल्यू है 40 डिग्री और b का वैल्यू है 30 डिग्री, मिला के मिल गया मेरे को 70 डिग्री। सो x का वैल्यू कितना आएगा, x का वैल्यू आएगा 70 डिग्री, ओके। सो बच्चों क्या करना है डायग्राम में, ये पूरा एंगल x है ना, इसमें से आधे को a ले लो आधे को b, ठीक है। a कैसे मिलेगा, इंटीरियर अल्टरनेट सेम 40 40। फिर नेक्स्ट वाला जो डायग्राम है ये है, ठीक है, ये 30 तो ये भी 30, ओके। देन आफ्टर दिस a और b को ऐड करेंगे तो पूरा x मिल जाएगा, दैट आई हैव डन। सो आई विल राइट डाउन माई फाइनल आंसर। व्हाट इज माई फाइनल आंसर, दैट x इज इक्वल्स टू हाउ मेनी डिग्रीज, इट इज इक्वल्स टू 70 डिग्रीज, ओके। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी एनी टाइम, ओके। टिल द टाइम हम लोग ये अभी लेसन जो है अपना नेक्स्ट एक्सरसाइज विल बी ऑफ द कंस्ट्रक्शन। इस एक्सरसाइज का जो नेक्स्ट पार्ट है वो है कंस्ट्रक्शन। तो इसके लिए ना सब लोग के पास में क्या क्या होना चाहिए, दैट आई टेल यू, ये अपने पास रखना फॉर द नेक्स्ट लेक्चर। फॉर नेक्स्ट लेक्चर स्टूडेंट्स व्हाट यू शुड हैव, नेक्स्ट लेक्चर के टाइम पे ये लेके बैठना खुद के साथ में, ठीक है। व्हाट यू शुड हैव, वेरी फर्स्ट थिंग इज यू शुड हैव सेट स्क्वायर विथ यू। सेट स्क्वायर होना चाहिए। सेट स्क्वायर मतलब ये ऐसा दिखता है, इसको बोलते हैं सेट स्क्वायर, ठीक है। सो बोथ यू विल टेक अलॉन्ग विद यू। देन सेकेंड व्हाट यू शुड हैव इज द कंपस। कंपस मतलब राउंडर, ओके। सो राउंडर होना चाहिए तुम लोग के पास में। यहाँ पे अपना पेंसिल होगा अटैच्ड, ये वाला राउंडर होना चाहिए। सो यू शुड हैव अ राउंडर and a compass and a set square for the next lecture, okay. Till the time, bye bye everyone and keep revising your lectures. Thank you.